کریں یار. جی قاری خدا بخش بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک شکر الحمدللہ میرے پیارے بھائی، اگر مسلمان ہیں تو طبیعت یہ ابھی ان کی بیٹری چارج کی ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کیسے شکر اللہ دا، طبیعت ٹھیک ہے میرے بھائی کی؟ شکر الحمدللہ. ہاں حضور کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 30 دجال آئیں گے. غصے میں کیوں رہتے ہیں ہر وقت؟ شوارما لے لیں تھوڑا سا ویس بھائی سے کھائیں، مزہ نہیں آئے گا. ہم تو بھائی بیٹھے، ہم نعرے لگا سارا دن نعرے لگائے ہیں، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اب جی ہم میں بھی لائیو لگا کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لگائیں میرے ساتھ مل کے لگائیں لبیک تاجدار لبیک خطب نبوت لبیک زندہ یا باد، رسول اللہ. لگائیں سارا میں کہہ رہا ہوں نا، لبیک لگائیں میرے ساتھ. لبیک یا رسول اللہ، اب لبیک رکنا نہیں ہے آپ نے، اب لبیک یا ماشاء اللہ رسول لگاتے اللہ، رہے. لبیک یا رسول اللہ، لگائیں اور لگائیں، رکنا نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم سارا دن نعرے جناب لگائے ہیں، سارا دن 3 دن سے نعرے ہی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی، لو یو ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم بھی کہتے ہیں لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہم ٹھیک ہو حاضر گیا. ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اب مجھے جی یہ بتائیں پیارے بھائی کہ 10 منٹ رہنے، جی جی اب مجھے جی یہ بتائیں گالی دے دے مجھے غصہ نہیں آتا، میرے باپ کو گالی دے دے پھر بھی غصہ نہیں آتا. جب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے گا پھر ہم اپنے سے بار ہو جائیں گے. ہماری اولاد، ہماری جانیں، سب چیز ہے نا، ہماری عزتیں، ہمارا مال سب قربان ہے. مجھے گالی دیں برداشت کر لواں گا، میرے گھر والوں کو گالی دیں میں برداشت کر لواں گا، بلا بالا کہیں گے تو میں برداشت کر جاواں گا. ٹھیک ہے نا؟ چلتے ہیں نا قاری خدا بخش بھائی، جتنا ساتھ گالی ساتھ دینی ہے مجھے دے، یعنی کوئی بات میرے گھر والوں کو گالی دے میں برداشت کر لواں گا، بلا بالا کہیں گے تو میں برداشت کر جاواں گا. ٹھیک ہے نا؟ چلتے ہیں نا قاری خدا بخش بھائی، جتنا ساتھ گالی ساتھ دینی ہے مجھے دے، یعنی کوئی بات میرے آقا کے بارے میں نہیں سن سکتا. صلی اللہ یہ علیہ میرا وسلم پڑھا کریں نا، ساتھ درود شریف پڑھا کریں جب اکیلے آقا نہ کہا. ہاں جی میں نے یہ جواب آپ کو دے دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی گل کرے. اب دیکھیں، اب عرض یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا محبت کا اظہار، یہ تو ہو گیا سر نعرے ہو گئے، یہ سارا کچھ ہو گیا. اب مجھے محبت یہ کا بتائیں کہ اس کے بعد پیارے بھائی اگلے کو بھی تھوڑا بولنے دیا کریں. یہ تو ہو گیا نا محبت کا اظہار، میں نے آپ کے ساتھ مل کے لگایا نعرہ، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں مجھے کس نے گالی دی ہے، کس نے گستاخی کی ہے؟ نہ کسی نے گالی دی نہ کسی نے غصہ کیا. میں نے کہا نہیں مرزا گستاخی دجال آپ کہہ کذاب رہے ہیں، بول دے. گستاخی کوئی کرے گا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، کس نے گستاخی کی؟ مرزا غلام نے انہیں گستاخی نہیں کی. تو اب جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. مرزا غلام احمد تو مر گیا، چلا گیا. اب کیا صورتحال ہے، کیا کرنا ہے اب؟ گستاخی تو کی نا اس نے. جی پیارے کی اس نے، لیکن وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں بھی نکال کے لندن لے گئے وہ. اب کس کو کوسنا ہے لندن یہ؟ وہ قادیانی میں نہیں لے کے گئے تھے، مرا تو ادھر تھا چبرجی لاہور میں. بس میرے پیارے بھائی یہی تو چکر ہے نا، اصل میں ہمیں پوری انفارمیشن نہیں نا ہوتی. وہ ادھر مرا تھا، پھر اس کو ٹرین پہ لاد کے لے گئے، وہاں پہ ادھر دفنایا، لیکن بعد میں یہ بھی اندرونی خبریں ہیں کہ انہوں نے مرزا کو اور اس کی بیوی دونوں کی ہڈیاں نکال کے پہلے لے کے آئے تھے ربوہ پاکستان، اور یہاں سے جب فرار ہوئے لندن تو وہ تابوت ساتھ لے گئے تھے. یہ بھی اندرونی ہمیں انہی لوگوں نے بتایا ہے. 50 سال ایک شخص ان کے اندر رہا، وہ قادیانی رہا، لیکن پھر اللہ نے توفیق دی، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے بتایا، وہ عہدیدار تھا ان کے اندر تھا، اس نے بتایا، اس نے کہا ہڈیاں ادھر پڑی ہیں. اب مجھے بتائیں آپ کرنا کیا ہے اب اس کا؟ وہ میرے گستاخی پیارے کر کے بھائی چلا گیا. میں کچھ ٹائم دن دوبارہ آ رہا ہوں، میری لائف چل رہی ہے، آپ دوسروں کے ساتھ باتیں کریں، میں تو کام پہ جاؤں. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نا، آپ رکیں پلیز، میں بھی اپنا کام چھوڑ کے آپ کی خاطر آیا ہوں. میں تھوڑا سا ضروری کام آ گیا ہے.
कोई जरूरी अरे काम आ भाई जाए ऐसे तो। खास मौके के ऊपर जरूरी काम पता नहीं क्यों दोस्तों को आ जाते हैं। मुझे ये मैं बताएं, वो मैं मर गया है यकीन अब, खुदा बख्श भाई यार की सीन है मतलब 3 दिन तो मेरा ਭਰਾ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ये भाई आप भी वही समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। सर यार मैं तो हमेशा ना वैसे भाई पॉजिटिव सोचता हूँ बहुत, मुझे आप पे भी एक दिन गुस्सा आया था लेकिन फिर ठंडा हो गया था। बात यह है कि मैं दिल में नहीं रखता बातें। मैं देखें हमारे पता क्या है, या तो बंदा खाली बढ़ के मार ले या प्रैक्टिकली करके दिखाए। हमारे बुजुर्गों ने कहा है किसी कलमा गो के बारे में 99 चीजें आपको गलत मिल रही हो, 99 इशारे मिल रही हो कि वो गलत है गलत है, एक सही मिल रहा हो तो आपने उसने जान रख के उस एक पे चलना है। मैं भाई के बारे में कल से उसने जान यही रखी बैठा हूँ कि उन्हें वाकई मोहब्बत है, वो वाकई कोई काम करना चाहते हैं। मैं सिर्फ समझना ये चाहता हूँ कि भाई ने नारे मारने से आगे भी कुछ एक स्टेप कोई तय किया है या करना है। अगर करना है हम उनकी हेल्प कर देते हैं, उन्हें थोड़ा कूल डाउन करते हैं, उनके साथ बैठ के 5 मिनट नारे हम भी लगा देते हैं ताकि उन्हें ज़रा अपनापन फील हो जाए। उसके बाद उन्हें पूछें कि भाई अब मसला ये है कि मिर्ज़ा मर गया है, जो पीछे बैठे हैं इक्का दुक्का टिकटॉक के गुस्ताखों को छोड़ के जो इतने हज़ारों में बैठे हैं वो तो गालियां नहीं देते, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या गुस्ताखी है। वो कहते हैं जी हम तो सच्ची इश्क और मोहब्बत की खातर हमने तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को फॉलो किया हुआ है। अब उन्हें बताएगा कौन भाई? नारों से बताएंगे हम उन्हें, नारे मार के मुर्दाबाद के नारों से हमने उन्हें बताना है कि भाईजान वो ये काम डाल के गया है। कोई तरीका तो अब आमन नजीर साहब के ऊपर कल भाई साहब ने फतवा जड़ दिया कि तुम तो कादियानी हो, अंदाजा करें जी मैं फरूक भाई अभी आप उसी पॉइंट पे आ गए, वो यही बात करने ऊपर आया था। सर मुझे पता है, तो मैं भी कल केस में भी फॉलो कर रहे हैं सर, डिटेक्टिव खन्ना अखा तो नहीं अन्ना, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ। मैं भाई साहब के बस पीछे आया इसलिए कि सर ये ज्यादती आप ना करें। अब मैं किसी जमात को किसी को लेबल नहीं करता, लेकिन हमारे बाज दोस्त भाई ऐसे हैं कि वो जो है ना यार वो कहती हैं कि बस फतवे नबूवत का काम करने का मतलब ये है कि डंडा पकड़ो चढ़ जाओ इन्होंने पीछे से तुम दो सारे हम। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसे ना करें। बाकी ये हमारे वैस साहब जो है ना, ये भी स्टार्टिंग में जो है ना फतवे की ज़द में आने वाले थे, लेकिन तो वाजे हो गए सामने। फतवे सब पे अब ऐसा अब आपको पता है मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं। ना करें, वाकई आपका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौकफ था, फिर भी आपके ऊपर लगे हैं। नहीं सर उसकी वजह एक और थी ना तो थोड़ा सा जब नहीं, इन्होंने स्टाइल चेंज किया ना। जब आप थोड़ा सा इख्तलाफ अपनों से करते हैं ना तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगता कि डंडा सोटा किधरों आ रहे। साढ़े मुसलमानों ਨੂੰ अल्लाह हिदायत देवे। लेकिन बात ये है, चले क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने, भाई इधर जो भी घूम रहा है ना कभी जिंदगी में सब के ऊपर फतवा लगा हुआ है, इसलिए टेंशन ना लें, अल्लाह का नाम लेके काम जारी रखें, ये होता रहता है। ये सच है, अल्लाह का फजल मेरे पे भी हुआ हुआ है। सर नहीं यार, सारे असली भाई असल में ना, असल में बात पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग ना बात के जो रियल मौजू है ना उनसे हट जाते हैं। जो हमारे पास एक रियल दलाइल और रियल चीज़ें हैं ना, हम अपनी उन चीज़ों से हट जाते हैं इनकी वजह से, और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम मौका दे देते हैं लोगों को उस चीज़ के ऊपर बात करने का जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। एक तो ये बात है, और दूसरा जो रियल बेसिस पे चीज़ें हैं ना, जो इनके कायद हैं, उनको सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो भी है चीज़ें, अगर वो अपने ये कोलोफिल में सच्चे हैं तो अपनी उन बातों को डिफेंड कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हम कुछ ये नहीं कह रहे। लेकिन बात है कि अगर इनकी तहरीरात कुछ कह रही हैं और ये बजाते खुद कुछ और चीज़ें कह रहे हैं, और वो मैं मिसाल देता हूँ इसकी ना, अक्सर आपको पता नहीं है, पता है कि नहीं पता, मैंने कहा कि इनकी मिसाल ऐसे है कि आप इनसे जब कोई बात करेंगे ना तो आप कैसे पकड़ेंगे। आप कहते हैं जी कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं कहता मेरे कमरे में जो मेरा बेड है ना, उसकी मिसाल ऐसे, मेरा बेड से मुराद है लाल रंग की मछली। तो आप पूछेंगे वैसे कैसे बेड लाल रंग की मछली कैसे हो गया? तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो मेरे कमरे का बेड है ना, ये जो बेड है इसकी लकड़ी आई है अमेज़न के जंगलों से, और वो जो अमेज़न के जंगल है ना उसके अंदर एक दरिया बहता है, उस दरिया के अंदर एक लाल रंग की मछली है, तो ये वहां से आई है। तो आप इसकी तावील को क्या पकड़ेंगे, आप क्या कह सकते हैं? आप एग्जैक्टली सही पकड़ा है आपने, यही तो है। मैं वो लिख रहा हूँ फरंगे अहमदिया, मैंने कई अल्फाज इकट्ठे किए हैं जिनके कोई मतलब नहीं है उसके अंदर, वो कभी मैं आपको सुनाऊंगा। अभी दूसरा मोबाइल जी है। कल आप सब ने जिंदगी में ना वो सुन रखी होंगी बातें, लेकिन जब एक साथ सुनेंगे ना तो यकीन करें, कल एक बड़े पुराने खिलाड़ी को मैंने सुनाया, कहता यार एक साथ सुन के ना दोबारा से मेरा दिमाग हिल गया कि यार किसी चीज का कोई मतलब है भी है। हर लफ्ज का जो है ना वैस भाई ये किया हुआ है।
तो मेरे ख्याल में इनकी यूथ को बताने की जरूरत है कि भाई दीन में चीजों का मतलब होता है, ये नहीं होता कि मतलब ही नहीं है किसी चीज का। भाई मौत का मतलब मौत नहीं, जिंदगी का मतलब जिंदगी नहीं, कोई मोजजा नहीं, किसी नबी की कोई जो है ना वो नहीं, हर चीज, फरिश्ते का मतलब फरिश्ता नहीं, जिन्नात भी एक गैर हकीकी चीज है। यार हर चीज अगर गैर हकीकी है और इल्ला माशाल्लाह ऊपर सोने पे सुहागा नबूवत भी गैर हकीकी है, तो मेरी जान है मुझे ये बताएं, आपको मानने ना मानने पर मुझे सजा हकीकी क्यों दे रहे हैं आप? हर चीज तो गैर हकीकी है, लेकिन मेरे ईमान के फैसले आप हकीकी कर रहे हैं कि मैं जहन्नम में चला जाऊंगा। उसको भी फिर गैर हकीकी रखें। आप ऐसे कहें कि अगर नहीं मानेंगे तो गैर हकीकी तौर पे ख्वाब में आपको छितर पड़ेंगे। उसूलन तो देखें यही बनता है ना। यार अहीर भाई, मैं आपको एक आज आज इनके एक बहुत बड़ी इनकी ब्रॉड है, उसके बंदे ने आज एक मिसाल दी है, मैं आपको मिसाल बयान करता हूँ, आप कानों को हाथ लगाएंगे। वो बंदे को कहता है कि आपकी उम्र कितनी है? वो कहता है 40 साल। कहता है अच्छा, तो कहता है कितने बच्चे हैं? कहता है 2 बच्चे हैं। कहता है ये बताओ कि अब आगे बच्चों का प्लान, अगर आप अपना इरादा बंद कर लो कि मैंने आगे बच्चे पैदा नहीं करने, तो क्या आपकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म हो गई है? वो कहता नहीं है। कहते हैं तो बस इसी तरह अल्लाह ताला ने अब रसालत के जो है ना, वो जो नबी आने थे वो आ गए हैं, लेकिन अल्लाह पैदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने इरादा खत्म कर दिया अपना। मतलब आप मैं आपको क्या, अब इसके ऊपर क्या कहेंगे आप बताएं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही होता है ना जब इनका बहुत बड़ा मतलब भाई, मतलब छोटा बंदा भी नहीं है वो। वो सारे, ये सारे एक से एक बढ़ के हैं। वो एक शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हर बंदा ही जो भाईजान टिकटॉक पे घूम रहा है वो अपने आप में एक फिलासफर है, अपने आप में एक वो दानिश्वर है, और उसकी एक अलग ही थ्योरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो आज मैं भी पहली दफा सुन रहा हूँ ये वाला लॉजिक। और नहीं हमजा भाई, नाम इसलिए नहीं लेना जरूरी होता यार, क्यों मशहूरी हमने उनकी करवानी है? अच्छी स्ट्रेटजी है, नाम लेना ही नहीं चाहिए। यही तो वो चाहते हैं कि जगह जगह हम उनके नाम लेते फिरें। अच्छा वो इब्ने आदम भाई है ना, वो